So here I am telling you the extra questions you will have to solve from chapter 3 of reference book. The questions are as follows. Example number 8 on page number 3.5. Page 3.5. Example number 8. If I am talking of 8, it means all the parts of it. Then 10, 11. Thereafter we will move to 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. 16, 17. 19 and 20. 19 and 20. Practice some of the questions from exercise also. That is question number 4 and question number 6. Exercise 3.2. Question number 4 and 6. Thereafter come to MCQ तो सारे करने ही हैं, all MCQs. और इसके बाद पेज नंबर 3.19 क्वेश्चन नंबर 9 and 10. Question number 9 and 10. So this many work you will have to solve from chapter 3. We were solving questions from chapter 1 and 2. So first of all I would like to know your problems. If you are having any doubt in chapter 1 and 2, please feel free to ask. I hope you have copied it. We are solving question number, example number 6 on page number 1.28. He is asking A is given as 0.1 bar. It means 0.11111. Okay. And B is given as 0.1110. So we will have to write an irrational number between these two. Okay. So how we will find out? Look, till here both the numbers are same. Okay. So we will have to go somewhere after it. Understood? This is 0, third place is 0, third place is 1, and then fourth place is 1. So what C will be if I am going to write a number between this? Till here it is same. And then you start your process. This number will lie between these two. Because till third it is same. And fourth is 1 and 1 here. So from 0 to 1 that number will lie in between. Okay. So this way this irrational will lie between these two numbers. What next? Haji beta. The question is prove that root 3 is an irrational number. Now how we will prove that root 3 is an irrational? If the decimal extension of root 3 is non-terminating, non-repeating, it is an irrational. Okay? So
how to find out the answer of root 3? We'll have to find out the square root. 3 प्लेस तक निकाल के देख लेते हैं कुछ रिपीट होता है कि नहीं होता. So 1 1 जा 1. What left is 2. Copy double 0. Decimal has the digits after decimal has been copied, so decimal in the quotient. Double of 1 will be 2. Whatsoever I am going to write here, the same I will write here. That will come 7. 1 8 9. What left? 11. Once again double 0 is copied. Double of 17. 34. How many times? 3 times. 3 3 is 9. 3 4 is 12. 3 3 is 9 and 1 10. So what left? 71. Double 0. Double of it. 3 4 6 and I think 2 times. So 2 2 is 4. 2 6 is 12. 2 4 is 8 and 1 9. 2 3 is 6. So this way you can see neither it is going to terminate nor the digits are going to be repeated. That is why it is an irrational. Yes, what next? Page 1.27. Example number 4. If this question is same in your book, wonderful. If this is not, then you will have to look for here and there. The question is 0.23 233 2333 and so on. And the other number is 0.25 255 2555. Both are irrational, and you will have to write a number which is lying between this. So look, 2 3 2 2 3 2 2 till here it is same. So whatsoever change we will have to do, we will have to do between these two numbers. 2 3 2 2 3 2 is same. After that there is a change. So we will make a change there. वहाँ change. Okay. So 0.23 नहीं यहाँ भी change आएगा. यहाँ भी change आएगा. 2 3 है यहाँ 2 5 है. So we can do it here only. 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1. These all will be lying between this. ये सब इसी के बीच में लाएंगे. Understood or not? Yes or no? समझ आई बात क्या? Because this is 2 3, this is 2 5. So 2 3 1 will lie between 2 3 and 2 5. So this way we will write the irrational number. समझ? क्या बेटा? Find two rational number. अच्छा, I thought कि irrational number होती है. Okay. So rational तो क्या है कि which is going to be terminated, जो इसके बीच में terminate हो जाए. तो 2 3 और 2 5 से आगे जा रहा है. तो एक तो मुझे सीधा सा यही दिख जाएगा 0.25 because this will surely lie between these two, and the other one is 2 5 I'll take it here. वो तो और आगे जा रहा है. I'll take it here. This will be terminating. ये terminate हो जाएगा. So this way these two will be the rational numbers between these two irrational. Generally irrational के बीच में rational फॉर्म पूछा जाता है. हमें हम पूछते हैं रेशनल के बीच में इर्रेशनल. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? चैप्टर 1 में कुछ और है. हाँ, MCQ 20 and 21. The number of consecutive zeros in it. How a number can have zeros in it? It depends upon 2 and 5. If we are having 2 and 5, that many zeros will be there. जितने 2 और जितने 5 होंगे उतनी zeros रहेंगे. अगर हमारे पास है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, so we will have 2 zeros. क्योंकि एक 5 तो 0 बन ही नहीं पाएगा. To make it 0, 5 and 2 both are right. Okay. So what he is asking, 2 to the power 3, 5 to the power 4, 3 to the power 4 7. इनसे तो 0 का कोई लेना देना ही नहीं, because 0 can be produced only by 2 and 5. So 3 and 4 with whatsoever is less, that many zeros will be. अगर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है तो 2, यहाँ पर 3 और 4 है तो
So 3 zeros will be there in the product term. Understood? Then 22. The smallest rational number by which 1/3 should be multiplied. तो कह रहे 1/3 should be multiplied by what rational number so that the decimal expansion terminates after one place of decimal. One place of decimal पर ये terminate होगा. Okay? So we will have to look for कि कितने इससे multiply करना पड़ेगा. Look, if we will divide something by 3, it is never going to terminate. You know ना कि terminate होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5. अगर 2 और 5 है तभी टर्मिनेट होगा, इसके अलावा कुछ और है तो टर्मिनेट नहीं होगा। अकेला 2 है चल जाएगा, अकेला 5 है चल जाएगा, लेकिन दोनों है तो भी चल जाएगा। अभी उस दिन पढ़ा था ना हमने, एक बार लिखा था ये फॉर बीइंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 to the power n into 5 to the power m or both is required. So here either I can divide it by 2, 3 तो रहना ही नहीं चाहिए, so 3 तो ऊपर आएगा जिससे ये 3 कैंसिल। ये हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन है नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा आंसर है बोथ, आइदर 2 और 5 और बोथ। तो अब क्या आंसर आ गया 3/10, ये ऑप्शन है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा and 3/10 will give us the terminating decimal. Understood? Yes. If you have started chapter 2, अगर आपने chapter 2 स्टार्ट किया है, हाँ बेटा, नहीं, you will have to convert them into lowest small rational number and then you will. सर बट आंसर से 21 का भी है और जबकि आंसर ये 3/10 बोलो बेटा, 3/10 आंसर is 3/10 ना, 1/10 था, 3 की तो आएगा 3/10, 3 से 3 कैंसिल होगा, then आगे 3/10 मिल जाएगा। हाँ जी, there is a rebate in homework that you can solve MCQ in book. You need not to solve MCQ in notebook. Notebook में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, MCQ कोई सारे क्वेश्चन आप बुक में ही सॉल्व करें, ठीक है। हाँ जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन? फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। फिर से वही बात है, 2.0 और 2.5 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं, कितने? 2। तो इरेशनल इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, किसके बीच में? 0 और 5, बिकॉज यहाँ तक तो सेम ही है, 0 और 5 नहीं है। तो 2.10 100 1000 और 2.31 311 3111। तो बोथ दीज आर लाइन बिटवीन 0 and 5। देखो यहाँ पर देखो ना, 0 और 5, 0 और 5 के बीच में ही है नंबर। अब ऐसा नहीं आप लिख दो 2.71, वो तो आगे निकल जाएगा, 2.71 will be ahead of 5, वो 0 और 5 के बीच में तो नहीं आ रहा है। That is why this one will be a wrong answer। ये इरेशनल तो है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में है। Understood? इरेशनल तो है ये। हाँ, what next? So the girl is asking a question from chapter 2, example number 7, question number 3। अब ये question number 3 थोड़ा सा परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा? Because it is a mixture of chapter 1 and chapter 2, and in chapter 2 we will have to study some identity। हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटी, ये उस आइडेंटिटी के बिना नहीं होगा। even तो जब आपने पूछ लिया है तो let me explain you कि आइडेंटिटी क्या है और वो कैसे होगा। जिस तरह से हम 4 आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़कर आए हैं, उसी तरह से 6 और आइडेंटिटी हमें क्लास 9 में पढ़नी है। उसमें से एक आइडेंटिटी होगी a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ आएगी कैसे? इसका आंसर होगा a माइनस b a² प्लस b² प्लस, या फिर a³ प्लस b³। दूसरी आइडेंटिटी होगी ये a³ प्लस b³, दोनों सेम है,
सिर्फ प्लस माइनस इधर उधर हो गया, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस, सिर्फ इतना। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी है हमारे पास, इनमें से किसी एक का यूज होकर क्वेश्चन को, कौन सा यूज होगा वो मैंने देखा नहीं, इसलिए दोनों मैंने आपको बता दिया। द क्वेश्चन इज x टू द पावर a, x टू द पावर, अब ये a और b का क्या बन जाएगा अगर x दोनों ऊपर जाएंगे तो a माइनस b, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ये वाली होगी, है ना, a माइनस b बनेगा तो आइडेंटिटी ये वाली होगी। और बाहर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लो, ये दे दिया उसके साथ, हो गया ना, a माइनस b बन गया यहाँ से, और ये उसने दे ही दिया, तो अपने आप बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे में क्या दिया, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c, ये क्या बन जाएगा, b माइनस c, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc उसने दे दिया। और इसी तरह से मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac उसमें दे दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज विद इट, इसको मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो इट विल बिकम x टू द पावर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात समझ आएगी ऐसा कैसे हो गया, जब x टू द पावर b ऊपर जाएगा तो इन डिवाइड पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, तो ये a माइनस b बन जाएगा। आया ना, एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या कि a की पावर m a की पावर n n a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, ऊपर जाएगा तो माइनस n, और मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी तो m माइनस n बन जाएगा, इट विल बिकम m माइनस n। उसी तरह से ये a माइनस b बन गया। ठीक उसी तरह से x की पावर b माइनस c बन गया, बना कि नहीं बना? यस सर। और उसी तरह से x की पावर c माइनस c, कोई परेशानी? पावर टू द पावर विल बी मल्टीप्लाई, पावर टू द पावर विल बी, तो x टू द पावर a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। सिमिलरली x टू द पावर b माइनस c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और x टू द पावर c माइनस a c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस। समझ आई बात? ये दोनों मिलकर क्या बन गया, a क्यूब माइनस b। कहाँ देख रहे हैं, a क्यूब माइनस ये क्या बन गया, b क्यूब माइनस, ये क्या बन गया, c क्यूब माइनस, मल्टीप्लाई में पावर यानी दिस प्लस दिस, है ना, तो x टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, देखो बना x टू द पावर b क्यूब, करेक्ट। इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर एंड पॉलीनोमियल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे बताइए फटाफट। Now we are solving example 12 on page number 2.9. Example 12, page number 2.9. A to the power minus 1, a to the power minus 1 plus b to the power minus 1, plus a to the power minus 1, a to the power minus 1 minus b to the power is to be proved as 2b square upon b square minus a square। ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो, पावर माइनस 1 को प्लस बनाने का तरीका, इफ इट इज इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस, और इफ इट इज इन डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में। लेकिन एक प्रॉब्लम, आज मैं जो अपनी बात कही है उसी को कॉन्ट्रोडिक्ट करूंगा।
This a to the power -1 cannot go in numerator. Why? Why it cannot go in numerator? It was already in numerator. It is already in numerator. It is in denominator. Because these things are not in multiplication. आज से जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उन सब पे यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है. So first of all we will have to solve their addition subtraction. Once it is done, then we will do. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 upon a plus 1 upon a. ठीक हो गया ना? अभी हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये न्यूमरेटर में था तो इसको यहीं डिनोमिनेटर में लिया, ये न्यूमरेटर में था तो इसको यहीं पर डिनोमिनेटर में लिया. ठीक है? हाँ, पॉजिटिव बना दिया सबको. हाँ बेटा. वो प्लस वाला कर दीजिए, छोटे को डाल सकते हैं. क्या बेटा? वो ये नीचे आ सकता है. नीचे आने की बात करो ना. नहीं, उसके नीचे के दो दीजिए ना. इन दोनों को साथ में ऊपर डाल सकते हो. वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं हो सकता. साथ में अकेले भी नहीं जा सकते. ना साथ में ना अकेले. अकेले भी नहीं जा सकते, साथ में भी नहीं जा सकते. है ना? यही करना. अब क्या करें? ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा. नीचे वालों का एलसीएम ले. इसका भी एलसीएम ले. अब देखो आपको ये चीज नहीं सीखनी पड़ेगी कि अभी तक आपने एलसीएम लिया है नंबर्स. अब आपको वेरिएबल नहीं, पॉलिनोमियल्स का भी वो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. तो जब भी हमें पॉलिनोमियल्स का एलसीएम लेना है तो क्या होगा? मान लो ये है a और ये है b. तो अगर दो नंबर ऐसे होते हैं तो इनका एलसीएम यही आ जाता है. और ये तो हमेशा एलसीएम होगा ही होगा. अगर कई बार आप शुरुआत में करते भी थे, भले ही ऐसा भी था 1/6 + 1/8, तो आप 6 8 का 48 एलसीएम ले लिया करते थे. जबकि एलसीएम तो 24 ही है, जो कॉमन है उसको हटाना है. लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं. कुछ कॉमन नहीं है तो अब देखो 3 तो यहाँ पर है तो यहाँ आएगा 5 और 5 तो यहाँ पर है तो यहाँ आएगा 3. ऐसे सॉल्व करते हैं ना. ठीक वैसे ही अब इसका एलसीएम नहीं, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी. ए तो यहाँ पर है तो बी का 1 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई हो गया बी, और बी तो यहाँ पर है तो ए का 1 से मल्टीप्लाई हो गया. क्या ये बात समझ आई? पक्का समझ आई? अगर देखो अब मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल ले, एक जगह x+2 दूसरी जगह x+3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? x+2 x+3 मल्टीप्लाई. ठीक है ना? तो x+2 तो यहाँ पर है, x+3 नहीं है. अच्छा यहाँ पर भी 4 और 9 लगूंगा, तो 4 का मल्टीप्लाई x+3. ठीक है ना? अब x+3 तो यहाँ पर है, x+2 नहीं है, तो 9 का मल्टीप्लाई. ये बात समझ आएगा? इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स का एलसीएम लेंगे. बाद में एलसीएम ब्रैकेट खोलेंगे, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, उनका बाद में तो जो होगा. कैसे बेटा? नीचे वाले में ना. हाँ, इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x+a x+b बिल्कुल लगा सकते हैं. आइडेंटिटी तो जो पढ़नी वो तो काम ही आने वाली है. So this is 1/a. एलसीएम आ गया ab और यहाँ आ गया b + a. ठीक है? कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं. यहाँ 1/a एलसीएम आ गया ab और यहाँ आ गया b. अब एक और चीज समझने वाली, फिर से क्या समझने वाली कहानी है. अगर हम a/b a/में c/d करते हैं, एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a/b मल्टीप्लाइड बाय a/b नहीं. ऐसा कैसे होगा? a/b डिवाइडेड बाय c/d था ना. a/b डिवाइडेड बाय c/d था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा. तो इस वजह से ये उल्टा होगा. ठीक है? ऐसे ही उल्टा हम इसको करेंगे. ऐसे ही हम इसको उल्टा करने वाले हैं. देखो 1/a into ab/a+b.
1/a और इसका मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल, ठीक है। इसी तरह से आगे 1/a इंटू ab/b माइनस a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बच क्या गया b/a प्लस b, b/b माइनस एलसीएम ले ले, क्या आ गया ये b प्लस लिखा, a प्लस b को लिख दिया मैंने, बात तो कोई नहीं पता बट आपको मल्टीप्लाई करना आसान है। तो b प्लस a, b माइनस a इज द एलसीएम, आया ना? अब b प्लस a तो यहाँ पर है, तो b माइनस a का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू b माइनस a तो यहाँ पर है, b में b प्लस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा बेटा कि नहीं दिख रहा? अब क्या वही नियति जो कह रहे थे, नीचे तो लगा दो आइडेंटिटी और ऊपर कर दो मल्टीप्लाई। चलो जी आइडेंटिटी लगेगी तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस इतना तो बन गई बात, b का b में, b का a में, b का b में और b का a में प्लस ab से माइनस ab, b स्क्वायर और b स्क्वायर मिलाकर अपॉन this way it is true। समझ आई कहानी? So this way we will solve it